Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome to the mathematics class, and today we are having our first lecture of class 9th, and I'm really glad to connect with you again through this subject as we have some really best memories with this course in the previous classes. So I hope you will take interest in the same way as you were passionate in the previous classes, inshallah. So let's start with the syllabus for midterm. You have to note this syllabus in your registers. Okay, today we are starting our chapter System of Real Numbers, Exponents and Radicals. This chapter contains 3 different topics: real numbers, then exponents and radicals, right? So first let's talk about what are real numbers. Okay, for the concept of real number, the use of number line is the easiest thing. Okay, students, we know that the number line consists of positive numbers and negative numbers with the central point 0, which is known as origin, right? So we can say that all numbers that can be represented in the number line are known as real numbers. Let's take some example. Here I pick -2. -2 is the real number. It doesn't matter either it is negative or positive. Similarly, consider 0.5, which lie between 0 and 1, right here, some position. So 0.5 is a decimal, but it is also the part of real number. Under root 2 contains 1.414, and the sign of continuity represents that it is the non-terminating number, right? अनस्टॉपेबल, मतलब इसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो कंटिन्यूड फॉर्म में हैं, इनके आगे भी नंबर्स मौजूद हैं. तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ये भी नंबर लाइन्स में एग्जिस्ट करते हैं. इट इज़ 1.4, सो इट विल एग्जिस्ट समवेयर बिटवीन 1 and 2, राइट? सो all the numbers that can be represented through the number line are known as real numbers. Clear? Okay, now what are the two basic types of real numbers? So for this we will see the different categories of decimals, terminating decimals. Okay, terminating means stoppable. Let's see this number. This is 0.375, right? And after the 3 decimal places the number is stopped, terminated. So it is known as terminating decimal, right? Okay, now non-terminating recurring decimal. By means of non-terminating, it is the number is in the continuity form, that is, it is not stopped here. We have some more digits after this 6 as well, right? And recurring means the decimal places repeating, just like here is 6, here is also 6. तो जो मेरे डेसिमल प्लेसेस हैं उनमें जो नंबर्स हैं वो रिपीटेशन में है, तो इसलिए हम इनको रिकरिंग डेसिमल्स भी कह रहे हैं, मतलब कि वो बार बार अकर हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग decimal category. And the third one is non-terminating non-recurring decimals. Non-terminating means they are in the continuity form, unstoppable, and non-recurring means their decimal part, their decimal places are not repeating. मतलब अगर यहाँ 4 है तो इधर 1 हो गया, then again we have 4, but after the 4 we will not observe this same pattern, right? So they are non-recurring. Now how these decimals are classified? These decimals are classified these two parts as rational numbers, terminating decimals, and non-terminating recurring decimal, right? And this third type is categorized as irrational numbers, and the combination of rational and irrational numbers make real numbers. Clear, students? So these are the two basic types of real numbers. And in rational numbers we have our whole numbers, natural numbers, integers. All those categories are basically the subcategories of rational numbers. Clear?
So this is your register work. You have to note down the definition for real numbers and make this graph, right? Now this is the chart which is summarizing the terminating decimals and recurring and non-recurring and its types, right? Note it down in your register as well. Okay, next topic, exponents. What are exponent? Exponent is basically the short form to represent a number which is multiplied by itself numerous times. कोई भी मेरे पास एक नंबर है जो कि अपने ही नंबर से डिफरेंट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंस्टेड के मैं उसकी बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट मेथड में प्रेजेंट कर सकती हूँ. तो जो शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ नोन एज एक्सपोनेंट. लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. 2 इज़ मल्टीप्लाइड 4 times here, right? 2 into 2 into 2 into 2. So I can write it as 2 raised to power 4. जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतने ही पावर रेज होती चली जाएगी. So that power is basically known as exponent, and this number is known as a base which is multiplied, right? And this answer is known as the value. Let's take this example. A multiplied by A multiplied by A. So we can write it as A raised to power 3, where this power is known as exponent and this is known as the base. Clear? And exponents are also called powers or indices. जो हमारे पास numbers होते हैं जिनको हम सुपरस्क्रिप्ट पे प्लेस करते हैं, को हम पावर्स भी कह सकते हैं, इनको हम इंडिसेस भी कह सकते हैं. एंड दे आर प्रोनाउंस्ड एज 2 raised to power 4, A raised to power 3 or A cube. Okay, here are some laws of exponents. Number 1, product law. Okay, there are 2 cases in the product law. When the bases are same and powers are different, so powers can be added. Here is the general form. See here we have the same bases and product is present here, and base and powers are different, right? Here is m and here is n. So the base is the common thing, right? Here is A, here is also A, so I have written it as the single time and the powers are added. ठीक, एग्जाम्पल से देख लेते हैं. 5 इसकी बेस है, इसकी बेस भी 5 है, राइट? बट यहाँ पे जो पावर्स रेज हो रही हैं दैट इज़ 4 एंड दैट इज़ 2. ठीक, तो वी कैन ऐड दीज एज 4 + 2 एंड द बेस रिमेन्स द सेम and can be written in the single time, right? So 4 + 2 becomes 6, 5 raised to 6. Second case, if the bases are different and powers are same, so we can take power common. देखिएगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे बेसिस सेम थी तो हमने बेस को कॉमन किया था और पावर्स को ऐड अप कर दिया था. पर अब ऐसा केस हो कि बेसिस डिफरेंट हैं और पावर्स सेम हैं, तो ऐसे केस में हमें बेसिस को मल्टीप्लाई फॉर्म में ही लिखना होगा, बट उनकी पावर एज अ कॉमन पावर हो जाएगी, राइट? जस्ट लाइक हेयर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, तो पावर्स तो सेम है तो वो मैंने कॉमन करके लिख दी, बट 3 और 2 जो डिफरेंट बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो 3 × 2 6 एंड इट इज़ 6 स्क्वायर, राइट? इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस केस. द नेक्स्ट लॉ इज क्वोशंट लॉ, right? Division. In division, if bases are same and powers are different, so powers will be subtracted. ठीक, जैसे देखिएगा यहाँ पे bases सेम है, powers different है, बट क्योंकि यहाँ पे division परफॉर्म हो रही है, तो ऐसे केस में हमें powers को subtract करना होता है, right? Here is the general form. And if bases are different and powers are same, so we have to do the same thing. We have to put the powers as common. Here 2 is the power and 2 is the power here also, so 3/2 and the common power is 2, and it becomes 3 into square 9 and 2 into square 4, so 9/4 is the answer for this, and it is the general form. Next one is power of power law. Power of power law means we have 2 powers or more than 2
पावर्स सेपरेटेड विद द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मौजूद है हमारे पास, ठीक है, और मल्टीपल पावर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पावर ऑफ पावर, राइट। तो ऐसे केस में हमें पावर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, और बेस तो हमारी है ही सिंगल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे बेस एज इट इज़ रही 2 ब्रैकेट एंड देन पावर इज़ 3, सो 2 into 3 पावर becomes 6 with the base 5 and it is the general form of this law. Zero exponent law. Zero exponent law means something raised to power 0 always equals to 1. कोई भी मेरे पास नंबर है, वेरिएबल है, अगर उसके एक्सपोनेंट 0 है तो उसको मुझे सिंपल 1 कर देना, ठीक है। उसमें कोई और रूल अप्लाई नहीं होगा, उसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इट विल सिंपली बिकम्स 1. क्लियर? ओके. नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ. इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, मेक इट पॉजिटिव बाय चेंजिंग इट्स पोजिशन, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी बेस मौजूद है, उस पर नेगेटिव पावर है, तो उसको मैं सिंपली उसकी पोजीशन चेंज कर दूंगी. जस्ट लाइक यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर -2 था, तो यहाँ पे 3 को मैंने डिनोमिनेटर में सेंड किया तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पावर पॉजिटिव इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि नॉर्मली जो हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसमें हमें पावर को पॉजिटिव रखना होता है, राइट। तो अगर आपके पास नेगेटिव पावर आती है तो आपको सिंपली उसको रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है, उसको उसके पोजीशन चेंज करनी है, तो आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी. इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस, राइट. You have to note all these laws in your register. Okay, exercise 2.2 is basically the application of exponents. It is very easy exercise, so students kindly do it by yourself, right. Now exercise 2.3, simplify. We have to simplify the exponents here by using different laws of exponents. Okay, so question number 1 is 10 raised to power 3 and whole power is square. So here I have simply applied product of product law. जो bracket था ये multiply पे change हो गया है, it becomes 10 raised to power 6 and it is the value of 10 raised to power 6, right. Similarly in this case 3 multiplied by 2 becomes 2 raised to power 6 and it is 64. Same in this case. Okay, here we have the negative sign with the base and we have even power over it, right. अच्छा, जब भी मेरे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि मेरे पास बेस के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है, और जो उसकी टोटल पावर है वो इवन है, तो ऐसे केस में जो नेगेटिव साइन है वो रिप्लेस हो सकता है, वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर -2 रेज़ टू पावर 4 हो और ये 2 रेज़ टू पावर 4 हो तो दोनों की वैल्यू 16 ही होगी, राइट। अगर आपको उसको प्रूफ करना हो तो आप -2 को ज़रा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाइएगा, देखिएगा आपका आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा एक रूल है कि जब भी आपके पास बेस नेगेटिव हो और इवन पावर हो तो ऐसे केस में आपको उसका माइनस रिमूव कर देना है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. हेयर वी हैव अप्लाइड कोशेंट लॉ. राइट, देखिएगा डिवाइड है और बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई, एंड 7 - 2 becomes 5 and it is the value. Right, same in this case, quotient law is applied here and we have a negative sign with the base and the total exponent is even number, so we can write it as 4 square, positive 4 square. Right, here is the quotient law. Okay, here is also the quotient law application. 8/4 can be reduced to 2. Right, 4 1s are 4, 4 2s are 8, and here a cube and in the denominator a raised to power 1, so 3 - 1 becomes a square, and b5, here b is 1, so 5 - 1 becomes b4. जहाँ जहाँ बेसिस सेम थे उनकी पावर्स को आपस में सिंप्लीफाई कर दिया, और जो नंबर्स थे अगर वो रिड्यूस हो सकते हैं तो करना होगा रिड्यूस, अगर नहीं हो सकते तो वो एज इट इज़ रह जाएंगे. क्लियर. Question number 9. Okay, here 3 and 21 can be simplified. 3 1s are 3, 3 7s are 21, and here is the minus sign, so place it here. X taken as common and power becomes subtracted because of the division.
here becomes 9 minus 5 and the total answer is this. Same in the case of part 10, m plus n raised to power 7 upon m plus n raised to power 6. ठीक है, इन दोनों की बेसिस पूरे सेम है. ये पूरा यहाँ पे m प्लस n पूरा बेस है आपके पास, इधर p प्लस q यहाँ पे कंप्लीट बेस है, राइट. तो जिनके बेसिस सेम थे उनकी पावर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ द डिवीजन, राइट. अच्छा, यहाँ पे 4 और 20 रिड्यूस हो गया 5 में, और दोनों साइड्स पे माइनस मौजूद था तो वो सिंप्लीफाई हो गए सिंपली, ठीक है. और 2p माइनस 3q पावर 12 माइनस 9, 4 minus 3r, 3 minus 1, power is 3 minus 1. Here it is present in with 1 power, and here it is 3. So 3 minus 1 becomes 2, right? Okay. Exercise 2.4, simplification. Question number 1, 3 upon 12 whole power is 6. Okay, so 3 upon 12 can be reduced to 1 upon 4, like 3 ones are 3, 3 fours are 12, right. तो अगर हमारे पास बेस सिंप्लीफाई हो सकती है, जैसे अगर फ्रैक्शनल बेस मौजूद है, ठीक है, और वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो हम पहले ही उसको रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद उनकी पावर को एक्सपेंड करेंगे. क्लियर. अच्छा, एक मेथड था कि अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देती पावर से एक्सपेंड, जैसे 3 रेज़ टू पावर 6 और 12 रेज़ टू पावर 6, होता ये कि फिर मेरा जो आंसर है वो थोड़ा लेंदी फॉर्मेट पर आता. फिर उस लेंदी फॉर्मेट को भी जब मैं सिंप्लीफाई करती तो फाइनल आंसर मेरे पास इसी अरेंजमेंट में आता. सो इट्स बेटर कि हम जो है बेस को अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो फर्स्ट स्टेप में ही रिड्यूस कर दें, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई बिग वैल्यू ना ऑब्टेन हो. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, पार्ट 2, 12 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5. ओके, 12 और 5 आपस में रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमने सिंपली इसकी पावर को एक्सपेंड कर दिया. ओके, अच्छा, यहाँ पे माइनस तो है पर पावर इवन तो नहीं है, पावर ऑड है, तो ये माइनस रिटेन होगा. क्लियर. इट इज़ a अपॉन b रेज़ टू पावर 6. अच्छा, यहाँ तो बेसिस भी सेम नहीं है और ये सिंपल वेरिएबल्स हैं, तो बस हमने इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर देना है, इनको सेपरेट करके लिख देना है. Here in question number 4 we have L upon m raised to power minus 3. अच्छा, अब यहाँ पे हम नेगेटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं. माइनस की जो पावर्स है उनको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी बेसिस होते हैं उनकी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ता है. तो अब ये L अपॉन m था, तो जब इसकी शिफ्टिंग परफॉर्म होगी तो ये m अपॉन L हो जाएगा, राइट. तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई. अच्छा, अब ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है फर्दर, तो अब हमने इनकी पावर्स को इंडिविजुअल फॉर्मेट में लिख देना है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5, here we have also the negative power, so I have just swapped the positions. 3cd becomes numerator and 8a square b becomes denominator, so power become positive, right. And then 3 upon 8 cannot be simplified, so I have just expanded the whole power, that is 3 square c square d square, and in the denominator it becomes 8 square a. अच्छा, a की अपनी पावर भी स्क्वायर थी और इसकी यहाँ पे भी स्क्वायर है, so it becomes 2 into 2, right, and b square. जो भी आपके पास होल पावर होती है और आपके पास जो बेस है वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट पे है, तो ऐसे केस में जो आपकी पावर है वो न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी काउंट होगी. क्लियर. अच्छा, इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया. सेम इन द केस ऑफ 9. ओके, 18 अपॉन 6 कैन बी रिड्यूस टू 3, राइट. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई हैव एक्सपेंडेड द पावर, द होल पावर, राइट. सो 3 into cube, sorry, right. And here x 4 into 3, 4 multiplied by 3 and so on. Clear. So 3 raised to power 3 becomes 27, and here are bases, but all the bases are different from each other, so they cannot be simplified further, right. Same in the case of part 10. Here 30 and 5 reduced to 6, and then we have expanded the powers. Clear. Okay, now you have to do question 6, 7, 8, 11, 12 of this exercise by yourself. They are very easy and similar to the questions
which I have solved here already. Clear? Now the new topic, radicals. Okay, what are radicals? Basically, radicals are the opposites of exponents. एक्सपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ सिंपली द रेडिकल. रेडिकल कंटेन दिस सिंबल ओवर द नंबर. कोई भी मेरे पास नंबर है और उसके ऊपर अगर ये साइन प्रेजेंट है, सो दिस इज़ द साइन ऑफ अ रेडिकल, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अंडर रूट भी कहते हैं. कि कोई भी नंबर है और अगर उसके ऊपर ये साइन हम कहते हैं दिस इज़ द अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 5, राइट. ओके, लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल. इट इज़ 3 स्क्वायर. ठीक. सो अगर मुझे इसका एक्सपोनेंट रिमूव करना हो तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी पावर चाहिए जो कि इस 2 को कैंसिल आउट कर सके, इस 2 को रिमूव कर सके. तो 2 को रिमूव करने के लिए मुझे 1/2 की नीड है ना. मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरे पास एक्सपोनेंट है 2 के फॉर्म में, ये मेरा रिमूव हो जाए और सिंपली 3 रह जाए. ठीक. तो इसके 2 को रिमूव करने के लिए मुझे 1/2 की नीड होगी. सही. तो 1/2 को मैं रूट वे में भी लिख सकती हूँ. जो सिंपल रूट होता है ना, जहाँ पे मेरे पास बाहर कोई नंबर नहीं है, इस सिंपल रूट की अपनी जो वैल्यू है वो 1/2 है. ठीक है. तो अगर मुझे स्क्वायर रिमूव करना है तो मैं सिंपली इस नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर प्लेस करूँगी. So square root means its value is 1/2. So this 1/2 can be simplified with the 2 and we will get our simple number. Okay, consider this number which have under root. Okay, this is known as simple square root or we can say inverse of square. कोई भी नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर है और ये वाला साइन है तो ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगा. अच्छा, इस केस में देखिएगा, सेकंड केस में यहाँ पे अंडर रूट तो प्रेजेंट है पर अंडर रूट के साथ एक नंबर भी प्रेजेंट है. तो अगर अंडर रूट सिंपल है तो वो स्क्वायर रूट है, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू 1/2 है. पर अगर कोई अंडर रूट है और उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू भी अटैच्ड है तो फिर वो उसी इन्वर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको हम क्यूब रूट कह सकते हैं, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ द क्यूब, right. And the number which is present under the radical sign is known as radicand and the value of the radical is known as index. So यहाँ पे 3 जो है वो मेरा इंडेक्स कहलाएगा. Clear? So what is index? Value of radical. And what is radicand? Any number or variable present inside the sign of a radical. Okay. Now exercise 2.5 which is based on radicals. Okay, here is your question number 1. Under root 169. अब इस नंबर को हमने ऐसे फॉर्मेट पे लिखना है कि वो मेरी किसी ना किसी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए. अच्छा, यहाँ पे सिंपल अंडर रूट है, कोई वैल्यू कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है. तो ऐसे केस में हमें ये पता है कि इसकी अपनी पावर इस वक्त क्या है, 1/2 है. तो जो मेरे पास अंदर नंबर प्रेजेंट है मैं चाहूँगी कि मैं उसको किसी ऐसे फॉर्मेट पे कन्वर्ट करूँ कि वो स्क्वायरिंग फॉर्म में आ जाए. स्क्वायरिंग फॉर्म में आने से बेनिफिट होगा ये कि वो अंडर रूट की वैल्यू से सिंप्लीफाई हो जाएगा ईजिली, राइट. सो 169 इज़ बेसिकली द स्क्वायर ऑफ 13. मतलब 13 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 13 × 13, सो इट विल बिकम 169. ठीक है. तो यहाँ पे 13 स्क्वायर प्लेस कर दिया, राइट. और स्क्वायर के साथ जब ये अंडर रूट इसकी पावर में कन्वर्ट हुआ तो ये 1/2 था एंड 2 से 2 यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया तो इट विल बिकम 13. ओके, नाउ हेयर इज़ 180. अच्छा, 180 इटसेल्फ किसी का स्क्वायर नहीं है. ठीक है. जैसे 169 13 का स्क्वायर था बट 180 किसी का स्क्वायर नहीं है. अब ऐसे नंबर्स मेरे पास अगर आ जाएँ जो इटसेल्फ किसी का स्क्वायर ना हो तो ऐसे केस में हमें उसके फैक्टर्स फॉर्म करने होंगे, राइट. 180 के जब मैंने फैक्टर्स फॉर्म किए तो मैं ये फिर जहाँ पे देखूँगी कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो पेयरिंग फॉर्म में है. जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का पेयर मौजूद है, 2 × 2, और 3 है तो 3 का पेयर भी मौजूद है. बट 5 यहाँ पे अलोन है, 5 का पेयर नहीं है. फाइन, जितने भी फैक्टर्स आए उन सब फैक्टर्स को मैंने उस नंबर की प्लेसमेंट पे पुट करना है, लिखना है. ठीक है. और जहाँ पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ सिंपल मैंने स्क्वायर कर देना. 2 × 2 बिकम्स 2 स्क्वायर, 3 × 3 बिकम्स 3 स्क्वायर. इसको स्क्वायर फॉर्मेट में करने का बेनिफिट यही है स्टूडेंट्स कि ताकि ये अंडर रूट से सिंप्लीफाई कर सकें हम इसको, सही. बट 5 का पेयर नहीं था तो 5 ऐसे ही सिंगल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, राइट. अच्छा, अब क्या है, ये अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर्स थे क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में थे तो ऐसे केस में हम अंडर रूट को सेपरेटली भी लिख सकते हैं.
विद इन द सिंगल नंबर, राइट। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर और रूट सॉल्व हो गए, इट बिकेम 2 ओनली। यहाँ पे स्क्वायर और रूट सॉल्व हो गए, इट बिकेम 3 ओनली। अच्छा, यहाँ पे इस अंडर रूट को कैंसिल आउट करने वाला कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, पावर नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रह जाएगा अंडर रूट 5। अच्छा, अब जो नंबर्स आउट ऑफ द रूट हो गए हैं वो अब सिंपल होल नंबर्स हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3s are 6 एंड इट इज़ अंडर रूट 5। क्लियर? ओके, हियर इज़ अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12। तो ये तो ऑलरेडी ही दो मतलब मल्टीपल्स हुए हैं, तो हमने इनको सिंपली स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, इट बिकेम 12 सिंपली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 16 एंड अंडर रूट 12। ओके, 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4, राइट। पर या तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 4 स्क्वायर, या फिर अगर हम इसके फैक्टर्स फॉर्म करें तो इट बिकेम 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो दोनों केसेस में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे, वरना फिर 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 12 इटसेल्फ किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 12 के जब हमने फैक्टर्स चेक किए तो 2 की तो पेयरिंग आ गई, बट 3 की पेयरिंग नहीं आई, 3 लेफ्ट अलोन। तो जो अलोन था उसको एज इट इज़ प्लेस कर देना है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट्स को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दें, जो नहीं कैंसिल हो रहे हैं वो एज इट इज़ रह जाएगा। जो नंबर्स अब आउट ऑफ द रूट हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, राइट। हेयर वी हैव 14 एंड 21। ओके, 14 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 7। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 7, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इन डिफरेंट रूट्स को एक कॉमन रूट में प्लेस कर दिया। रीज़न उसका ये था स्टूडेंट्स, क्योंकि डिफरेंट रूट्स पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दोनों के पास एक एक 7 मौजूद है, और है तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हम किसी भी स्टेज में रूट्स को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और रूट्स को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूट्स को कंबाइन किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ से 7 का पेयर मिल सकता था, ठीक। और यहाँ पे 2 इंटू 3 रह गया अभी एज इट इज़, ठीक। 7 इंटू 7 बिकम 7 स्क्वायर, और जब यहाँ पे रूट इन तीनों के सेपरेट आउट होंगे तो 7 स्क्वायर से रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये 7 रह जाएगा खाली। अच्छा, अब अंडर रूट में यहाँ पे 2 नंबर्स मौजूद हैं और दोनों ही सिंप्लीफाई नहीं हुए, तो ऐसे केस में उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और रूट को सिंगल टाइम लिख सकते हैं। सो इट बिकम्स अंडर रूट 6 इंटू 7, और वी कैन से 7 अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ वी हैव प्लस ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस आ गया है, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास रेडिकल सेम है तो रेडिकल्स कॉमन आ जाएंगे, ठीक। और जो उसकी वैल्यू है, जो उसके साथ का नंबर प्रेजेंट है, वो नंबर्स आपस में इस तरह से ऐड हो जाएंगे। सो अंडर रूट 5 इज़ कॉमन हेयर, एंड 3 + 8 बिकम्स 11, और वी कैन से 11 अंडर रूट 5। सेम इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव subtraction and we have the same radical, so radical became common, and 5 minus 2 became 3, so it is 3 under root 8. Same in the case of question number 12. Clear? Now the question you have to do by yourself are question 6, 7, 8, 9. Okay, moving towards exercise 2.6. It is also based on the concept of radicals, radicand index. Question number 1 is very easy. Here are some radicals and you have to separate out the radicands and index. रेडिकेंड कौन से नंबर को कहते हैं? जो कि अंडर रूट के अंदर मौजूद होता है, और जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो इंडेक्स कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपली अपने इंडेक्स को रेडिकेंड्स को सेपरेट करना है। 2 पार्ट्स बता दिए मैंने आपको करके, रिमेनिंग आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। हेयर वी हैव अंडर रूट बट विद द इंडेक्स 3। यहाँ पे 3 भी मौजूद है, तो 3 इसका इंडेक्स, इट मीन्स कि 1/3 बनेगी ये पावर, ठीक है। और जो रेडिकेंड है दैट इज़ 27, सो 27 कैन बी फैक्टराइज इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे देखें ये 1/3 बनाएगा, अगर मतलब इसको अंडर रूट से मैं प्लेस करूँ, पावर पे शिफ्ट करूँ, तो ये 1/3 बनाएगा। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं रेडिकेंड को किसी ऐसे फॉर्म में लाऊँ कि मेरे पास क्यूब आ जाए, ठीक है, पावर 3 आ जाए, ताकि पावर 3 सिंप्लीफाई हो सके, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 3 हुआ, अब ये पावर 1/3 में कन्वर्ट हो गई, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ओके, नाउ हेयर वी हैव इंडेक्स 4 एंड द रेडिकेंड 625। 625 को जो फैक्टराइज किया, सो वी हैव 5 4 टाइम्स, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5,
इट बिकेम 5⁴, ये 1/4 में कन्वर्ट हो गया है जो आपका इंडेक्स था, तो इट बिकेम सिंपली 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हेयर वी हैव द इंडेक्स 8 एंड रेडिकैंड a⁻8 एंड b⁻8। अगेन वही वाली बात कि भाई रेडिकल्स में जब नंबर्स मेरे पास मल्टीप्लाई फॉर्म में है और रूट को मैं फिर सेपरेट आउट कर सकती हूँ उसके इंडेक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली कि ये जो इंडेक्स है ये a⁻8 के साथ भी है और ये जो इंडेक्स है ये b⁻8 के साथ भी है। तो मैंने इस कंबाइंड रेडिकल को सेपरेट फॉर्म में लिख दिया, इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स ताकि कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाए। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा 8 और 1/8 सिंप्लीफाई हो गए एंड a इंटू बी बिकम्स ab, राइट। हेयर वी हैव द सिंपल रेडिकल विच मीन्स इट इज़ द स्क्वायर रूट, ठीक। तो अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी प्रेजेंट है, तो सिंपली बस ये 1/2 से कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो इट बिकेम 5/7। ओके, हेयर वी हैव द इंडेक्स p एंड होल पावर इज़ p। अच्छा, इंडेक्स p होने का मतलब ये है कि इसकी पावर 1/p है, सही है, और जो होल पावर है वो p है। तो 1/p से p पावर कैंसिल आउट हो गई, तो रेडिकैंड मेरा सिंप्लीफाई होकर mn हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हेयर वी हैव इंडेक्स 3 एंड रेडिकैंड 81/125। अब हम इन दोनों के फैक्टर्स फॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 3 की फॉर्म में ऑब्टेन हो, मतलब क्यूब की फॉर्म में ऑब्टेन हो, ताकि 1/3 से सिंप्लीफाई हो सके। पर जब 81 को फैक्टराइज किया तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑब्टेन हो रहे हैं 3, तो अब इट्स फाइन, अब 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा। बट जब 125 के फैक्टर्स किए तो यहाँ पे 5³ आ रहा है, 5 3 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप पे मैंने ये किया कि इस इंडेक्स को न्यूमरेटर के साथ भी सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी सेपरेट कर दिया, और जो 3 मेरे पास क्यूब बना रहे थे उनको मैंने क्यूब फॉर्मेट पे लिख दिया। क्यों लिखा क्यूब फॉर्मेट पे? ताकि वो नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट से कैंसिल आउट हो सके, √3 से, राइट। अच्छा, इसके साथ अच्छा जब मैंने ये इन 3 को अरेंज कर दिया तो यहाँ पे एक जो सिंगल 3 रह गया वो एज इट इज़ रहेगा। पर ये जो इंडेक्स है 3, ये इंडेक्स तो मेरा इस नंबर के साथ भी मौजूद है और इस नंबर के साथ भी मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स को सेपरेट आउट कर लिया है। सेपरेट आउट करने से बेनिफिट ये हुआ कि ये तो रिड्यूस हो गया, बट ये वाली फॉर्म रिड्यूस नहीं हो सकी क्योंकि इसके पास कोई अपनी पावर मौजूद नहीं है। सो इट विल रिमेन एज √3 विद द इंडेक्स 3, राइट। अच्छा, डिनोमिनेटर पे भी 5³ था और इसकी अपनी पावर भी 1/3 है, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गए। तो 3/5 तो सिंप्लीफाई हो गया, बट ये नंबर मेरे पास सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो ये एज इट इज़ आंसर में प्लेस हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, हेयर वी हैव द डिफरेंट इंडेक्सेस, इंडेक्स n एंड इंडेक्स m, बट वी हैव द बेसिस सेम। दोनों पे क्यू है, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि इनको इनके जो इंडेक्स थे उनको पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 1/n एंड 1/m। अच्छा, अब बेसिस सेम है और डिवाइड है, तो बेसिकली वी हैव टू अप्लाई द क्वोशंट लॉ, सो पावर बिकम सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड इन द क्वोशंट लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट पे है पावर, तो फ्रैक्शनल फॉर्मेट पे जो मेरे पास कोई भी नंबर होते हैं या पावर्स होती हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको सिंगल फ्रैक्शन में लाने के लिए मुझे LCM मेथड यूज़ करना पड़ता है। इन LCM मेथड वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, दैट इज़ n इंटू m बिकम्स nm, सो nm इज़ बेसिकली द LCM है, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर्स में नंबर प्रेजेंट है उनको लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल टर्म्स बाय योर LCM। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे जो रफ वर्क किया है, देखिए ये आपका LCM है nm, ठीक, और आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/n, तो 1/n को अपने LCM से रिड्यूस कीजिए, n से n कैंसिल आउट हो गया, m ones are m, so here your first numerator is m, sign is minus, here we have to place the minus, the next term is 1/m and LCM is nm, ठीक है। तो यहाँ पे m से m सिंप्लीफाई हो गया एंड n इंटू 1 बिकम्स n। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यूज़ आती है ना स्टूडेंट्स LCM के बाद, वो इस तरीके से आती हैं कि उसको आपने अपने LCM जो आपका आंसर आया होता है उससे आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जो कैंसिल आउट हो जाए वो हो जाता है और जो रह जाता है उनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्लियर? ये स्टेप समझ आ गया? ओके, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, हेयर वी हैव द इंडेक्स 4
and the radicand is 256 A4B4. So 256 को जब factors form में convert किया, so here we have 2 raised to power 8. 2 कितने टाइम्स ऑब्टेन हुए? 8 टाइम्स. लिख दिया 2 raised to power 8. कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो 4 है और 4 और 8 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, राइट. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली बस पावर्स को सेपरेट आउट कर लिया. जैसे ये √4 था ना, तो √4 1/4 में कन्वर्ट हो गया. अब ये 1/4 इंडिविजुअल नंबर्स के साथ सिंप्लीफाई हो गया. ठीक है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so it becomes 2 square and 2 square becomes 4, and here the whole powers are simplified, so it becomes simple AB. So 4AB is the answer. You have question number 14. Here we have 64 upon 216 as a radicand, and A cube B9 and C60 18, and the index is 3. Okay, so 64 को जब फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, so it became 2 raised to power 6. और 2 raised to power 6 भी कर सकती हूँ और 4 क्यूब भी कर सकती हूँ. 4 को 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 64 ही ऑब्टेन हो जाएगा. तो बेसिकली जब हम फैक्टर्स फॉर्म करते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें फैक्टर्स बनाने. तो स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टर्स जो है वो 2 से ही पॉसिबल होते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में तो हम लेते ही 2 हैं. तो अगर आप 2 raised to power 6 भी करते हो, सो इट्स फाइन. और अगर आपको पता है कि 4 का क्यूब भी 16 होता है, तो यू कैन यूज़ 4 क्यूब हेयर एज वेल. क्लियर? नो प्रॉब्लम इन इट. अच्छा फाइन, यहाँ पे हमने पहले फैक्टर्स अरेंज कर लिया. अच्छा, 216 को जब इसके फैक्टर्स फॉर्म किए, तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स ऑब्टेन हुआ और 3 भी 3 टाइम्स ऑब्टेन हुआ. तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, राइट. अच्छा, जो इंडेक्स था उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1/3 एंड 1/3. फिर ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो हर इंडिविजुअल नंबर के साथ ये पावर इंट्रोड्यूस होती चली जाएगी. जहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है वहाँ कैंसिल कर दीजिए. हेयर 3 1s are 3, 3 2s are 6, so it becomes 2 square, and here whole powers are simplified. Here 3 1s are 3, 3 3s are 9, so it becomes B cube, and in the denominator here all powers are simplified. Here we have only 3. Here we have 3 1s are 3, 3 2s are 6, so it becomes C square. Here we have 3 1s are 3 and 3 6s are 18, so it becomes D6, right. Now 2 square is 4, and in the denominator we have 2, and 2 and 4 can be simplified as 2, but here this 3 is also present. The 3 is not simplified with the 2, so it will remain in the denominator, right. And here we have no common bases A, B, C, D. They all are different, so they can be present in the answer, right. Okay students, so I think you have understood all the points, but if you have any problem in any topic, in any question, so you can ask me. Okay, so kindly students do your work nicely, and our next week topics will be properties of real numbers, and in these properties inshallah we will cover exercise 2.1. basically it is objective based, right. So I will explain you in the next class, and we will cover also exercise 2.7 and 2.8, right. Okay students, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.